Hello, children. How are you all? Hope you would have understood the chapter and you have read the chapter twice. So, after the understanding of the chapter, we'll move on to our textual exercise, that is the explanation of the meanings. Already, I have explained you the meanings. Once we'll go through it and then to the question and answers. So, let's move on to standard 8th English, chapter number 3, The Footsteps Die Out Forever. Now, the meanings will start with the meanings explanation. The first meaning is historical novel. Now, I explained you what is a historical novel. It's a book based on people and events in the past, पुराने time के बारे में. The second meaning is injustice. Yes, injustice. It means an unfair situation in which people are not treated equally. मतलब लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है. Then the third meaning is guillotine. It means it's an equipment. I explained when I was explaining the chapter. It was used during the French Revolution to behead, means लोगों के सिर काटने के लिए यूज़ किया जाता था. behead aristocrats जो रिच पीपल थे उनके लिए. एंड वो मशीन में एक हैवी ब्लेड होती है जो स्लाइड होती है और नीचे एक वुडन फ्रेम पे सर रखा जाता है. इट इज़ लाइक दैट. Then, dear students, the fourth meaning is nobility. It means people who are of high class, social class, especially those who have special titles. मतलब बहुत high class को belong करते हैं. Then dear students, the fifth meaning is spectacle. It means an unusual or surprising sight. ऐसा कुछ surprising event होता है वो. Then sixth one is survey. It means to look carefully at something. Then the seventh one is lingering. Yes, lingering. It means continuing, slow to end. Then dear students, slow to end. Then the eighth meaning is, so shattered means shocked and upset. Yes. Then the ninth one is appeals, means किसी को request करना for help urgently. Then the 10th one is his face clears, means stops looking worried or angry. मतलब वो गुस्सा होना और चिंतित होना stop हो जाना. Then the 11th one is aristocrats. It means people belonging to the highest social class, जो rich लोग होते हैं वो. Then the 12th one, to pay the price. It means to suffer because of something that he has done. मतलब जो चीज़ उसने कुछ खराब की है उसके लिए उसे सफ़र करना पड़े. Then 13th one is at peace. It means without any disturbance. कुछ भी बीच में disturbance ना होना. Then the 14th one is throng. It means it's a crowd of people. भीड़, लोगों की भीड़. Then 15th one, closes behind, means moves closer to something. मतलब किसी भी चीज़ के नज़दीक जाना. Then dear students, the 16th one is the supposed evermore. It means the person believed to be evermore but who is not the real evermore. Means वो मैंने आपको स्टोरी में बताया था, supposed evermore means जो एक्चुअल में evermore नहीं था उसकी जगह कोई दूसरा पर्सन था. Then 17th one is seamstress. It means a woman whose job is sewing and making clothes. जो औरत सिलाई करती है और क्लॉथ्स बनाती है उसको seamstress कहा जाता है. Then 18th one is if it weren't for you. It means if you had not been here with me. अगर तुम मेरे साथ ना होते तो. Then 19th one is faint of heart. It means not brave or confident, easily frightened. It means बहुत जल्दी से घबरा जाना और जो ताकतवर और confident ना हो वो. Then the 20th is mind. It means be worried about. मतलब उस बात के लिए worry करना. And the last one is sublime, means very noble and inspiring. किसी को प्रोत्साहन देने वाला ऐसे. Now let's move on to the question answers. Now dear students, in some questions there are two questions together in the textbook. I have split that two questions, so you have to write it like this only.
Our first question is, how do the people in the houses react to the carts on the streets? मतलब people ने कैसे उन reaction दिया carts वहाँ से गुजरे streets पे तब. The people in the houses are so used to the carts, मतलब वो उससे used to थे, daily देखते थे ऐसा सब on the street, that there are नो क्यूरियस फेसेस, इसलिए वो देख के वो क्यूरियस नहीं थे. एट द विंडोज़ पे कोई देखने दौड़ के नहीं आ रहे थे. एंड नो वन पॉजेज इन देयर वर्क, और कोई अपना काम भी स्टॉप नहीं कर रहा था. बट देयर आइज लुक केयरफुली एट द फेसेस इन द कार्ट, बट खाली उन लोग ध्यान से उन लोगों को देख रहे थे. नाउ द सेकेंड वन इज, व्हाट आर द कार्ड्स यूज्ड फॉर? ये कार्ड्स किस लिए यूज़ किए जा रहे थे? सो द आंसर इज, द कार्ड्स वेयर यूज्ड टू टेक पीपल फ्रॉम द प्रिजन टू द गिलोटिन. मीन्स उस जगह पे ले जा रहे थे जहाँ उन्हें मौत की सज़ा मिलने वाली थी जेल से. देन द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ डू द पीपल इन द कार्ड्स बिहेव? मतलब कार्ड्स में जो लोग थे वो कैसे बिहेव कर रहे थे? तो सम ऑफ द पीपल इन द कार्ड्स ऑब्जर्व द स्ट्रीट कामली. कोई जो लोग थे कार्ड्स में वो स्ट्रीट को एकदम शांति से देख रहे थे, रास्तों को. वाइल अदर्स लुक ऑन विथ अ लिंगरिंग इंटरेस्ट इन लाइफ. और दूसरे जो लोग थे वो उसके उनको लाइफ में जो इंटरेस्ट था ऐसे देख रहे थे. देन द अदर्स मीन्स सेवरल क्लोज देयर आइज एंड थिंक. और कुछ लोग अपनी आंखें बंद करके सोच रहे थे किस बारे में? और ट्राई टू गेट देयर थॉट्स टुगेदर, मतलब अपने थॉट्स के बारे में, अलग अलग थॉट्स उनके मन में आ रहे थे उस बारे में सोच रहे थे. एंड ओनली वन मैन सिंग्स एंड ट्राइज टू डांस. और एक ही आदमी था जो गाना गा रहा था और डांस कर रहा था. नन ऑफ द राइडर्स अपील टू द पिटी ऑफ द पीपल. और कोई राइडर्स वो जो सब बैठे थे, कोई वो लोगों से उम्मीद नहीं कर रहा था. पिटी ऑफ द पीपल मीन्स ऐसे हेल्प की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज, whom डू द हॉर्समैन पॉइंट टू? और हॉर्समैन ने किसकी तरफ पॉइंट किया? द हॉर्समैन पॉइंटेड टू सिडनी कार्टन हु दे थिंक इज चार्ल्स एवरमोंड. उन्होंने सिडनी कार्टन की तरफ पॉइंट आउट किया, जो उनको लग रहा था कि वो चार्ल्स एवरमोंड है. देन the fifth question is, describe this person's behavior. This person's behavior means ये जो आदमी था सिडनी कार्टन, उसका बिहेवियर आपको डिस्क्राइब करना है, कैसे वो अपने आप बिहेव कर रहा था. द आंसर इज, ही स्टूड एट द बैक ऑफ द कार्ट. कार्ट के पीछे खड़ा था एंड में, विथ हिज हेड बेंड डाउन, अपना सिर झुका के, एंड टॉकिंग टू अ गर्ल who was sitting on one side of the cart. और एक लड़की से बात कर रहा था जो वो कार्ट के एक साइड में बैठी थी, एंड होल्डिंग हर हैंड, उसका हाथ पकड़ के. देन ही हैड नो क्यूरियोसिटी और केयर फॉर द सीन अराउंड हिम. और उसके मन में कोई क्यूरियोसिटी नहीं थी कि कुछ जानने की, एंड उसको कोई केयर नहीं था कि क्या आजू बाजू में हो रहा है किसी चीज़ के बारे में. वो खाली ही ओनली स्पोक टू द गर्ल, खाली वो लड़की से बात कर रहा था. Then some people in the street shouted against him. और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में शाउट कर चिल्ला रहे थे. But he reacted to them. उसने उनके सामने कैसे रिएक्ट किया? If at all with a quiet smile, हल्की सी मुस्कुराहट से. And उसने shook his hair a little more loosely about his face. और अपने बालों को ऐसे अपने फेस पे हिलाया. Then sixth question, it's, why was the spy worried? ये स्पाई क्यों वरीड था, क्यों चिंतित था? सो आंसर इज, द स्पाई वॉज वरीड बिकॉज ही थॉट दैट सिडनी कार्टून हैड चीटेड हिम. पहले उसको ऐसा लगा कि सिडनी कार्टून ने उसे चीट किया, एंड हैड फ्लेड अवे फ्रॉम प्रिजन टू एस्केप बीइंग गिलोटेंड. मीन्स उसको ऐसे लगा कि उसने इससे चीटिंग, उसको कहीं वो दिखाई नहीं दिया, तो वो सोचने लगा कि इसने मेरे साथ चीटिंग की है, और वो प्रिजन से, जेल से भाग गया है ये गिलोटिन के डर से, मौत की सज़ा सुन के. देन डियर स्टूडेंट्स, द सेवेंथ क्वेश्चन इज, व्हाट डज द क्राउड्स रिएक्शन टू एवरमोंड शो? ये क्राउड का जो रिएक्शन था एवरमोंड की तरफ, वो क्या हमें बताता है? तो द आंसर इज, द क्राउड्स रिएक्शन टू एवरमोंड showed that as he was a member of the aristocracy, the crowd hated him
so much that they wanted him to die. और ये रिएक्शन ये बताता था कि वो एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता था, मीन्स हाई क्लास फैमिली से, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो लोग थे, क्राउड था, वो उसको हेट करते थे और चाहते थे कि वो मर जाए. देन 8th question is, how did Sydney Carton comfort the seamstress? Now seamstress, dear students, I explained you, a woman is there whose job is making clothes and sewing. So उसने उसको कैसे सांत्वना दी? He comforted the seamstress by holding her hand. उसका हाथ पकड़ के उसको comfortable feel करवाया. Then he also reassured, और उसको assurance दिया कि her by telling her that her death at the guillotine would be quick and blessed her. और उसने कहा कि तुरंत ही तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कैसे तुम मर जाओगी, एंड उसको ब्लेसिंग्स दी. Now our last question is, what were Sydney Carton's last thought? As I explained you in the chapter, the last ending thoughts, what he was thinking about when he was going to die, that you have to explain it over here. So the answer is, his last thoughts included a prediction, मतलब वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहा था, प्रेडिक्ट कर रहा था कि ऐसा हो सकता है एंड ऑल. सो ही सॉ अ ब्यूटीफुल सिटी, उसे एक बहुत ब्यूटीफुल सिटी दिखाई दी, ब्रेव पीपल दिखाई दिए, एंड न्यू लाइफ ऑफ पीस एंड फ्रीडम, ऐसी लाइफ लोगों की दिखाई दे रही थी. देन ही सॉ द पीपल लिविंग हैप्पीली एंड प्रॉस्परसली इन एन इंग्लैंड दैट ही वुड सी नो मोर, और उसको लोगों की लाइफ बहुत ही हैप्पी और प्रॉस्परस लग रही थी इंग्लैंड में, जो वो कभी नहीं देख पाने वाला था. देन और उसे लूसी मैटेनी, ही सॉ लूसी मैनेटी विथ अ चाइल्ड इन हर आर्म्स, उसको लूसी दिखाई दी अपने हाथ में एक बच्चा लेके पकड़ के खड़े हुए. हु वुड बी कॉल्ड बाय हिज नेम, और उसने उसका नाम सिडनी रखा हुआ है. एंड ही न्यू दैट ही वुड बी फॉन्डली रिमेंबर्ड, और लोग उसे हमेशा याद रखेंगे. एंड ऑनर्ड इन देयर हार्ट्स फॉर एवर, और उसको ऑनर करेंगे और सल्यूट देंगे उनको हमेशा के लिए. सो ही थॉट दैट हिज सैक्रिफाइस, और जो इसने ये सैक्रिफाइस किया है, वॉज द बेस्ट थिंग ही हैड डन, वो सबसे अच्छा थिंग था जो उसने अपनी लाइफ में किया है. एंड हिज डेथ वुड ब्रिंग अ बेटर रेस्ट देन ही हैड एवर नोन, और ये बहुत ही अच्छा उसने जो लाइफ में काम किया, और उसकी डेथ की वजह से सब कुछ अच्छा होने वाला है. Now dear students, there is one more exercise over here. In this, some lines are given over here. It is type of reference to contest. So you have to read this line and answer the questions. The first line is, he is going to pay the price in less than 5 minutes. Let him be in peace. Now this is the line. Now in that first question is, who said these words to whom? Now who is speaking these words? So the spy said this to a man standing behind him on the steps of a church. Spy ने उस आदमी को कहा जो उसके पीछे खड़ा था चर्च के स्टेप्स पे. Now the second question is, which person is being talked about here? कौन से आदमी के बारे में इस लाइन में बात कही जा रही है? Yes dear students, it is about सिडनी कार्टन डिस्गाइज्ड एज चार्ल्स एवरमॉन्ट, जो चार्ल्स एवरमॉन्ट बन के वहाँ आया था, उसके बारे में इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. देन फॉर दिस फर्स्ट लाइन द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई मस्ट दिस पर्सन पे अ प्राइस? इस पर्सन को क्यों पे अ प्राइस, मीन्स व्हाई ही हैज़ टू पे अ प्राइस. नाउ द आंसर इज, ही मस्ट पे अ प्राइस फॉर बीइंग एन एरिस्टोक्रेट, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट था, बहुत ही हाई क्लास से बिलोंग करता था, whom द क्राउड हेट्स, और ये क्राउड उसे बहुत ही हेट करते थे. ही वॉज टू बी गिलोटिन्ड, और उसको डेथ की सज़ा सुनाने वाली, मतलब उसकी डेथ होने वाली थी, उसको ये सज़ा मिलने वाली थी. देन डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड लाइन विच इज़ गिवन ओवर हियर इज, I see her with a child in her arms who bears my name, and I know that I am fondly remembered and honored in their hearts forever. Now, this line for that first question is, who are the people the narrator is referring to? अब किसको रेफर कर रहा है नरेटर, किसके बारे में बोल रहा है ये लाइन्स?
So yes, the narrator is referring to Lucy Manatee and her family. Then question B is, what vision does he have of this people, और इसके people के बारे में वो क्या सोच रहा है. He saw that them happy and prosperous in the England he would see no more. और उसने उन लोगों को हैप्पी और प्रॉस्परस बहुत ही रिच हुए देखा इंग्लैंड में, जो वो कभी नहीं देख पाएगा. एंड ही कुड इमेजिन, और वो इमेजिन कर रहा है कि लूसी विथ अ चाइल्ड इन हर आर्म्स हु वुड बी कॉल्ड बाय हिज नेम. और लूसी एक अपने गोद में एक बच्चा लिए खड़ी है जिसका नाम उसने उस सिडनी के नाम से रखा हुआ है. द लास्ट क्वेश्चन इज, why does he believe he will be fondly remembered and honored in the hearts? क्यों ऐसा सोच रहा है कि वो लोग उसे हमेशा रिस्पेक्ट देंगे और याद रखेंगे. Yes, he believes that he would be remembered and honored by those people because they would never forget that he had sacrificed his life for their well-being. क्योंकि लोग उसे इसलिए नहीं भूल पाएंगे क्योंकि उसने अपनी लाइफ इनके लिए गुमा दी, सैक्रिफाइस कर दी उनकी अच्छाई के लिए. सो डियर स्टूडेंट्स, you all have to write this exercise, all the three which I have explained, first meanings, then question answers and the explanation of these lines in your FNB with black and blue pen, as we all are always you all are writing. Yes, now I hope you would have understood this explanation of the question answers. So start learning this question answers also. Thank you dear students.